Mr. Vice Chairman, uh, I am starting my speech highlighting the point with which Honorable Member Jairam Ramesh explained it in detail. See, when the forests have to be protected, there the forest dwellers, particularly the Adivasis who have been there for centuries, they have to be protected. And we had enacted an act for them in 2006, where their Grama Sabhas and individually and collectively they have been given certain rights. Those have to be protected. A mention of that in this bill was necessary. However, we explained that it can be, those things can be included in the rules. Of course, now that may be the only possibility. We should have included their provisions for them in the bill because, see, about quarter of a century back, we enacted the 73rd and 74th amendments to the Constitution, giving rights to the panchayats. But when you look back to the history of how it has been implemented in our various states, in spite of these amendments to the Constitution, very little have been done in various states to hand over power as well as resources to the local bodies. In such a situation, it is highly necessary in the case of Adivasis who are most neglected. Now, it is borne out of the fact that their education, their health conditions, their livelihood, everything is in a very bad condition. So that part should have been included, and our party has brought in an amendment to that, to this. That has to be considered. That was what I have to say. Second thing I have to say is that maybe the government, whether the present government or the earlier government, have been having a satisfaction that during the 90s, there has been an increase of 0.22% in our forest cover. In 2000 to 210, that's a decade, the increase in forest cover has been 0.4%. It has increased. And as my Honorable Member Harivamsh has just mentioned, between 2013 and 2015, more than 5,000 hectares of land has been afforested. This is a very good description in figures. But there have been studies, various studies by various competent authorities and groups in our country. I will just mention in what way this has been done by KDPL in Karnataka in the Kuntirebu forests, where iron ore has been excavated. After that, afforestation has been done. What did they do? In the slopes, there were lakhs of tons of loose mud. They removed it and filled up a 100-meter valley, which is below 100 meters. 100 meters have been filled up by this mud. What happened was that valley, the ecosystem of the valley has been completely annihilated. Second, for afforestation, what they did was the grassland above. Now that has been a system which has been there for long. That has been attacked, and millions of non-native trees have been planted there. That has been the afforestation. Now, such an afforestation will not do good for that land. So, what has happened is that the Bhadra river watershed in that area, that has been fully annihilated by these three interventions. Now, if we are doing afforestation in this fashion, that will not do good. That is what the CAG has pointed out in 2013 report. Now, this
regarding this Bhadravali afforestation, certain competent studies show that 74% of that is unsuccessful. Please conclude. Your time is I'm over. concluding. Only 13% is successful. So what we want is afforestation we require. But it is not planting trees, any kind of trees in any place. It has to be done in a proper manner, in a scientific manner. Then only we can have afforestation. Then only such forest will be able to do its 5 kind of duties. I don't want to go into the details. If a forest has to do its dharma, its functions, then afforestation has to be done improperly. What we have done during the past, most of them do not belong to that level. So when we say that these 40,000 or 42,000 crores of rupees are given to the states, and they do the afforestation in the fashion that they were doing earlier, it will be a big tragedy, a big catastrophe. It should be avoided. Thank you. Thank you. Mr. Dilip Kumar Tirke. थैंक यू सर। फाइनली आज कंपा बिल पास होने जा रहा है और मैं इस बिल के सपोर्ट में कहने जा रहा हूं। जहां तक मेरा जानकारी है, उड़ीसा के कंट्रीब्यूशन कंपा फंड के लिए काफ़ी है, लगभग 7,000 करोड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं मंत्री जी से, बिल पास होने के बाद जितना जल्द हो सके राज्यों को फंड दिया जाए और इसके लिए डेडलाइन भी तय किया जाए ताकि लेट ना हो। कंपा बिल फंड के बारे में हमारा पहला सुझाव है कि क्लॉज 3 में राज्यों द्वारा जुटाए गए धन का जो 10% नेशनल फंड में रहने का जो प्रावधान किया गया है, उसे घटाकर 2% किया जाए, क्योंकि एफोरेस्टेशन और उससे जुड़े जमीन काम राज्यों सरकार ही करते हैं और इसके अलावा भी राज्य सरकार के पास कोई रिसर्च करने के प्रयास करते हैं, स्टडी करके नए चीज़ें करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए जो नेशनल फंड में 10% है, उसे घटा के 2% किया जाए। महोदय, स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ वायु चाहिए, इसके लिए घन जंगल चाहिए। महोदय, जो नेशनल अथॉरिटी में जितने भी पैसा आ रहे हैं, उसका सटीक उपयोग होना चाहिए, सटीक विनियोग होना चाहिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, रोड में इधर उधर ज़्यादा खर्च ना करके रिसर्च में, फॉरेस्ट ग्रोथ कैसे होगा इसमें, जंगल की सुरक्षा में, वाइल्ड लाइफ में। और आजकल हम देख रहे हैं कई जगह पथरीली जगहों पे बहुत हजार पेड़ लगे हुए हैं, पर उसका कोई केयर नहीं कर रहे हैं। 8 साल 10 साल के बाद भी वो पौधे की पौधे रह रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। और आजकल हम देख रहे हैं जहां हमारा जंगल सब है, घन जंगल है, वहां पे आसानी से आग लग जा रहा है। लेकिन आग लगने के बाद फिलहाल हमारे 4-5 माह नीचे हमारे मयूरभंज के सिमली पार में काफ़ी आग लग गया था, बहुत मुश्किल से काबू में आया है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भी लगा था। लेकिन आग लगने के बाद हजारों लाखों पेड़ नष्ट होने के बाद हम पहुंचते हैं, तो ऐसा इक्विपमेंट लाया जाए बुझाने के लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। महोदय, अफोरेस्टेशन के लिए काटते हैं पेड़ लेकिन लगाते हैं पौधा, जो कि पौधा बढ़ने में 25-30 लग जाता है, 25-30 साल लग जाता है। हम हर साल हम हाईवे रोड बनाते रहेंगे, लाखों पेड़ करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ पौधा ही लगाते रहेंगे।
इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं चीन में कई नई टेक्नोलॉजी आया है, बड़ा बड़ा पेड़ को निकाल के कहीं और जगह लगा देते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमें भी अपनाना पड़ेगा ताकि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो 25-30 साल ना लगे और जो हमें चाहिए स्वस्थ जीवन, जो घन जंगल चाहिए, वो बना रहेगा। महोदय, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, कल हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में तारीफ किया था, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, पहली बार भारत में, आपने कल तारीफ किया इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, भारतवर्ष में हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जंगल में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, जंगल में जो वनवासी रहते हैं, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से, 100 साल से, उनको पहली बार उनका जंगल जमी पट्टा दिलाया है और सबसे ज़्यादा हमारे ओडिशा में हुआ है। महोदय, मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये बिल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे कहने के लिए मौका दें, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। श्री वीर सिंह। महोदय, प्रतीकात्मक वृक्षारोपण निधि विधेयक 2016-17 पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक देश के प्रत्येक राज्य के अधीन एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतीकात्मक वृक्षारोपण करने, निधि के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्राधिकरण के गठन और बादान रोपण, वन संरक्षण, वन संबंधी अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन जीव संरक्षण कार्यक्रम और इस प्रकार संग्रहित धनराशियों के उपयोजन व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अभी कारणों से वसूल की गई रकम जमा करने आदि के संबंध में उपबंध करने हेतु लाया गया है। महोदय, यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के आधार पर तदर्थ प्राधिकरण के पास संचित निधियों और राज्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संग्रहित की जाने वाली निधियों का किसी पारदर्शी नीति में सुरक्षा और त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रतीकात्मक वृक्षारोपण निधि तथा एक राष्ट्रीय प्रतीकात्मक वृक्षारोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण तथा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में राज्य प्रतीकात्मक वृक्षारोपण निधि तथा राज्य प्रतीकात्मक वृक्षारोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण करने का प्रस्ताव करता है। महोदय, यह विधेयक वन भूमि के परिवर्तन के कारण पैदा हुए दबाव को कम करने के अलावा पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में लाभकर संपत्तियों की संरक्षा के साथ रोजगार के असंख्य अवसर पैदा करेगा। साथ ही साथ प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के पास संचित अवशिष्ट धनराशि जो वर्तमान में 42,000 करोड़ है एवं पूंजित अवैध शेष पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं ब्याज का ताजा संग्रहण जो कि सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपए होगा का सक्षम एवं पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य में व केंद्र शासित प्रदेशों में प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था करता है। यह प्राधिकरण गौरवनीय उद्देश्य हेतु वन भूमि के परिवर्तन से इकट्ठी हुई धनराशि का उपयोग कृत्रिम वृक्षारोपण में प्राकृतिक तौर पर होने वाले वृक्षारोपण की मदद में वनों के संरक्षण के लिए, वनों की अवसंरचना के विकास हेतु हरित भारत कार्यक्रम के लिए एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने एवं वनों का संरक्षण तथा विकास सुनिश्चित होगा तथा वन भूमि में बदलाव का असर कम किया जा सकेगा। महोदय, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, परंतु राज्यों में वन क्षेत्र मानक के अनुसार नहीं है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है,
यहाँ विकास के साथ वनीकरण व जीव संरक्षण हेतु समुचित प्रबंध की बात कही गई है और सक्षम प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किया गया है। महोदय, हमें वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु वन महोत्सव बनाना चाहिए, जिसमें सरकारी महकमों, स्थानीय निकायों, सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों, स्कूल, कॉलेजों, उद्योग समूह और जन भागीदारी से वृक्षारोपण का कार्य करवाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ भी वनीकरण किया जाना चाहिए। रेलवे की संपत्तियों पर भी सामाजिक वनीकरण होना चाहिए। महोदय, वैकल्पिक वनीकरण के लिए सरकार द्वारा लाया गया विधेयक समय की मांग है और यह राज्य संघ क्षेत्रों को वनीकरण करने हेतु सशक्त करता है, परंतु राज्य को धनावंटन प्रक्रिया उसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहे व धन क्षेत्र भी बचा रहे। महोदय, वनों में आए दिन आग लगती है, जैसे कि उत्तराखंड में जो वनों में आग लगी थी उससे काफ़ी जीव जंतु मारे गए थे तथा वनों का काफ़ी नुकसान हुआ था। इस ओर हमें आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आग को लगने से रोका जा सके। महोदय, वनों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उनके जमीनें विभिन्न कार्यालयों के लिए ली जाती हैं, कंपनियों के लिए ली जाती हैं और उससे जो पेड़ लगे होते हैं उनको काटा जाता है, तो उस पर हमें आदिवासियों को मुआवजा देना चाहिए, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रफुल्ल पटेल जी। महोदय, हम जिस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे ज़िले का हूँ और हमारे दिग्विजय सिंह साहब जानते हैं कि जो वन क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र वन से ऑलरेडी वहाँ पर है और वन क्षेत्र के साथ साथ हमारा पूरा इलाका जो है, आप भी वैसे वाकिफ भी है, एक और मंडला, जबलपुर, इस और बस्तर, गढ़चिरौली, ये सारा इलाका उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास और वन ये दोनों को साथ साथ में चलाना, ये एक बहुत जिसको कहते हैं बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को आपको बड़े मशक्क़त के साथ इसको निभाना होगा। सवाल ये है कि आपने ही कहा था कल कुछ आंकड़ेवारी में कि 2009 में ये कैंपा का फंड 10,000 करोड़ था और अभी 2016 में इस कैंपा का फंड 42,000 करोड़ उसमें हो गया है। इससे भी क्या इंडिकेशन होता है? इंडिकेशन इज दैट जिस तेज़ी के साथ हमारा विकास हो रहा है, चाहे रास्ते बन रहे हो, चाहे वो उद्योग आ रहे हो और कोई भी जो उसमें हमारे इरिगेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हो, तो हमें पावर प्लांट आ रहे हैं, उसमें भी जिसका प्लांट आप कहना चाहते हो, जिसको आपने रोका था, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अदानी का पावर प्लांट मेरे क्षेत्र में, क्योंकि आपको उसमें विशेष रुचि रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों से ये साबित होता है, इस आंकड़ेवारी से ही, कि किस तेज़ी के साथ हमको विकास के लिए वनों की क्षति करते हुए भी हमारा विकास करना आवश्यक हो गया है। So it is a nature and a development conflict which has to be addressed very meaningfully, and that is why this Campa fund has been created. And there is no doubt that this 42,000 crores must be transferred as soon as possible to the states, because they are the ones who have to actually implement it. इसमें केवल मेरा एक ही सुझाव है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने मेरे क्षेत्र का क्यों जिक्र किया। लोगों को क्या लगता है, और दिग्विजय सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, इसलिए उन्हें भी ज़्यादा मालूम है कि लोगों को क्या लगता है कि हमने हमारे वन बचा के रखे, इसलिए सबसे ज़्यादा हमको ही इसकी मतलब परेशानी उठाना पड़ता है। डेवलपमेंट जब होता है तो हमारे ही पर सबसे ज़्यादा बोझा ये आता है, क्योंकि आपके वहाँ वन है, आपके वहाँ पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, इसीलिए यहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। तो ये एक हमेशा वहाँ के लोगों के मन में एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है। आज मैं महाराष्ट्र का किस्सा बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ये कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए आप पैसा जो आप देंगे, ये पैसा कहाँ खर्च होगा? उन्हीं जिलों में खर्च ज़्यादा से ज़्यादा होगा जहाँ पर वन वहाँ पर हैं, वहाँ कटा और वहीं के वहीं आप लगवाएंगे। इतना बड़ा क्षेत्र है राज्य का, उस बाकी जिलों में जहाँ पर वन है ही नहीं, जहाँ पर बंजर भूमि बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है,
वहां पर ये पैसा खर्च करने के लिए राज्य सरकार भी ज्यादा कोई उतना अपना दिमाग या ध्यान उसमें नहीं लगाती है। और इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि when you set the guidelines and the rules, you must make sure that the forest cover is uniformly distributed. Otherwise, though it may be there in principle, but in implementation it is not actually happening. मुझे मालूम है हमारे वहां पर कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनता है या पावर प्रोजेक्ट बनता है, उसका कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन वो बोलते हैं कि यहीं के यहीं डबल लैंड वहीं करना है। मेरे क्षेत्र में झुड़पी जंगल एक नॉमेनक्लेचर है, दैट इज डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट को ही वहीं पर जंगल लगाने की बात होती है। पूरे राज्य में कितनी जगह बंजर जमीन पड़ी है, वहां पर कोई लगाने की सोचता ही नहीं है। और इसी वजह से आज ये कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड इतनी बड़ी तादाद में जब स्टेट्स को दिया जाएगा, उसको सही तरह से उसका उपयोग होना चाहिए। इट शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू, एंड दिस इज अ फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, हमारे यहाँ वन विभाग की ओर से कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन वो वृक्षारोपण जहां वहां करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, आर दे यूजफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस? केवल पेड़ पौधा लगा दिया और उसको बड़ा कर दिया, लेकिन उसका सही में उस लोकल कम्युनिटी को, जो जयराम रमेश कहते हैं कि भाई लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, तो उस लोकल कम्युनिटी को, क्योंकि हर सोशल फॉरेस्ट्री होती है, हर गांव में होती है, जमीन दी गई है, उस सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से उस गांव को कितना पैसा मिल सकता है, वहां की कम्युनिटी को किस तरह से आमदनी बढ़ सकती है, या उन पेड़ों का किस तरह से पूरे स्टेट को, समूचे देश को किस तरह से फायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। केवल रैंडम अफॉरेस्टेशन करना ये कोई बहुत सही नीति नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 42,000 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट। I think if you look at it as a subhead, I think it would be one of the largest subheads available to spend to the states if as and when this money will be transferred. Please conclude. And therefore, this 42,000 crores must be spent intelligently, wisely, and uniformly. I think this is the need of the hour. Thank you. D. Raja. Thank you, sir. I am in broad agreement with the observations made by Mr. Jairam Ramesh. Sir, this bill has a very limited purpose, that is to distribute the funds, 10% to national fund, 90% to state fund. But there are certain larger questions involved. I think the minister understands. The larger question is, how are we going to protect our biodiversity? Forest does not mean only trees and cutting down some trees, planting some trees somewhere else. That is not that issue. How we are going to preserve our biodiversity? Because forest means forest dwellers, people. Forest means the animals which live in forest. Forest means a whole comprehensive biodiversity. And it is, afforestation means just recreation of forest. What is our understanding of recreation of forest? How are we going to protect our biodiversity? We discuss many things about climate change, global warming, how to mitigate the impact of those things. But when it comes to our own concerns, how we are going to address? This minister should take note. Biodiversity, the question of protecting the biodiversity, number one. How you are going to do that, number one. Number two, the forest dwellers, mostly they are tribal people, they are Dalits, mostly. There can be some others also, but mostly they are tribal people, they are Dalits, and their livelihood depends upon the forest. Their livelihood depends upon the forest, and how we are going to address their concern, their livelihood. People are important. You cannot simply evict people, and there are instances, despite the Forest Rights Act, the forest dwellers are evicted, forcibly evicted. It happened in several states, and as a government has failed, as parliament has failed,
Parliament passed the Forest Rights Act, but Parliament failed to protect the forest dwellers. They are being evicted. How you are going to address that question? Number two. Number three, when you take over forests for some non-forest purpose, maybe industry, maybe infrastructure, maybe something else, but who decides? Who decides? How you decide? There I think the Gram Sabha, their opinion matters. You will have to take the Gram Sabha into consideration. We may think we are chief ministers, we are ministers, we know the geography, the history, the sociology, the psychology of people better than anybody else. We may claim, but they are the people living there, Gram Sabha. They are the villagers, they live. The forest dwellers, they live. They smell the soil, they smell the plant, they smell the grass. They know better than anybody else. And we should take their opinion, and they must be taken into confidence. There I agree with my good friend Jairam Ramesh. Gram Sabha's approval, their sanction is necessary, and they must be taken into confidence. And because this bill, sir, you may not agree with communists, or Jairam Ramesh also may not agree with communists, but we should at least believe in science, dialectics of nature. There should be balance between land, between people, water, air. There should be a balance. And then only you can build an eco-friendly society, and you can preserve the biodiversity in our country. Thank you, sir. Thank you. Now, Sri Digvijay Singh ji. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं इस बिल का जो उद्देश्य है उसका समर्थन